itself was promoting incompetency, inefficiency and corruption in this country. As a result of that, and you can imagine, अगर हमारी सरकार की इस तरह की पॉलिसी होगी तो हमारे देश में क्या होगा? Supply was controlled, demand was used, and therefore country became a seller's market. Everything that you produce was sold like a hot cake. क्यों? क्योंकि 30 करोड़ की पॉपुलेशन है, सप्लाई आपने कंट्रोल कर दी. क्यों कंट्रोल कर दी? क्योंकि आपको इंडस्ट्रियलिस्ट से रिश्वत चाहिए. And that is how India became a seller's market. आपको एक किस्सा बताता हूँ कि किस तरह से हमारे देश में the world prophet was looked upon with contempt. I was reading a book by R.M. Lala. He has written a book on Tatas by the title Beyond the Blue Mountains. And there is a mention in that book कि J.R.D. Tata और पंडित जी they were in conversation together. तो J.R.D. Tata ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आपके सारे PSUs लॉस कर रहे हैं. Why don't you give all your PSUs to us? We will make them profitable. Pandit ji retorted. He said, Jay, never ever mention this word profit before me. But this is how the word profit was looked upon in this country. Can you imagine Sanjeev Bajaj, Ajim Premji, Ratan Tata, सुनील भारती मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये कल को अपने सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स को बुलाएं अपने ऑफिस में और उनको बोलें कि देखो भाइयों, अब तक आपने प्रॉफिट बनाया वो ठीक है, कल से प्रॉफिट आपको नहीं बनाना है. कैन यू इमेजिन दैट? But that is what unfortunately happened in this country. As a result of that, we became a seller's market. And what happens in case of a seller's market? In seller's market, you don't feel the need to innovate. क्यों नहीं? क्योंकि आपको मालूम है घोड़ा बनाओ, गधा बनाओ, खच्चर बनाओ, सब कुछ बिकता है. बिकता ही नहीं है बल्कि प्रीमियम पे बिकता है. So would you do innovation? And we did not obviously do the innovation. How would happen? How would you treat a consumer in a seller's market? So a consumer का कस्टमर का मतलब क्या है? कस्टमर का मतलब है कष्ट से मर, यानी कि कस्टमर. मैंने प्रोडक्ट भेज दिया, चले तो तुम्हारा नसीब, नहीं चले तो तुम्हारा नसीब, मेरे पास में वापस आने की जरूरत नहीं है. कंज्यूमर का मतलब क्या है? कंज्यूमर का मतलब है कौन जा मर, वो कंज्यूमर. दिस इज व्हाट वुड हैपन इन अ सेलर्स मार्केट एंड लीडिंग टू पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट्स. Unfortunately, that is what was happening in this country. And let me give you a few examples of poor standards of service and goods that were produced in this country. हम सभी को मालूम है, there was a time in this country there used to be an airline called, there used to be a scooter called Vespa scooter. I am sure ये जनरेशन को शायद कुछ पता ना हो, लेकिन हमें से कुछ लोगों को पक्का बात मालूम है कि हिंदुस्तान में एक समय था कि जैसे ही कोई आदमी पिता बनता था तो सबसे पहला काम आपको मालूम है वो क्या करता था? सबसे पहला काम वो करता था, बजाज ऑटो का शोरूम ढूंढता था और वहां पे जाके बजाज ऑटो का स्कूटर बुक करता था. अब आप सोचेंगे, वॉज इट कि हिंदुस्तान में ऐसा था कि आज़ादी के बाद जो बच्चे पैदा होते थे, पैदा होने से स्कूटर चलाना शुरू करते थे? वॉज इट सो? नो, इट वॉज नॉट सो. देन व्हाई दे वुड डू इट? दे वुड डू इट बिकॉज उनको मालूम था कि जब तक मेरा बेटा या बेटी 18 साल की होगी तब जाके मुझे स्कूटर की डिलीवरी मिलेगी. So for a product scooter, you had to wait in this country for 18 years because of the policies that we pursued in this country. और ऐसा नहीं है कि आपको ऑफ द सैलरी मिल सकता था, आपको ऑफ द सैलरी मिलेगा, बस खाली ये कि उसकी ऑफिशियल प्राइस है 8,000, आप 32,000 पे करो, 24,000 कैश में और 8,000 and then you will get it. Simple product of transportation, and you had to wait for 18 years in this country. And I'm sure, sir, you would agree with me. Am I saying correct? Actually, sir, am I saying correct? Yes, yes. And that, of course, is that. There used to be an airline in this country called Indian Airline. Indian Airline, the service was so bad. The flights were never on time. Food was terrible. Air hostesses, I better not say anything. The quality of the service of Indian Airlines, Indian Airlines was so bad that उस जमाने में बोलते थे कि जब आपने एयर इंडिया की फ्लाइट बुक कर दी, मतलब बोर्ड कर दी, तो AI का मतलब था इन्फॉर्म अल्लाह.
and then there was another airline called Indian Airlines, और उसका मतलब था already informed. There used to be airline called Vayudut. People would prefer to call it Yamdut, क्योंकि कभी उसका टायर नीचे तो कभी उसका डोर नीचे. And thankfully they closed that airline, and that was the service that we were getting in this country. There was a telephone. आज की जनरेशन बिल्कुल यकीन नहीं कर सकती है कि हिंदुस्तान में एक समय था जब आपको टेलीफोन के लिए, सिंपल टेलीफोन के लिए 8-10 साल वेट करना पड़ता था. You had to wait for 8-10 years. और अगर आपको किसी से बाहर गांव बात करनी हो तो आपको ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था, और अगर आपको जल्दी बात करनी हो तो आपको लाइटनिंग कॉल बुक करनी पड़ती थी. तो जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि इसको लाइटनिंग कॉल क्यों कहते हैं. तो आज मुझे समझ में आया कि उसको लाइटनिंग कॉल क्यों कहते थे. उसको लाइटनिंग कॉल इसलिए कहते थे कि जब उसका बिल आता था तो आपको लगता था एज इफ यू हैव बीन हिट बाय लाइटनिंग. सो दैट वाज द काइंड ऑफ अ सिचुएशन इन द सर्विस दैट यू हैड इन दिस कंट्री. टेलीफोन. Indian Airways, Doordarshan. The quality of program was so good that people would prefer to call it Dur Se Darshan. This is what was happening in this country, and you can imagine, अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी ऐसे प्रोडक्ट देगी और ऐसी सर्विस देगी तो उसकी इकोनॉमी को क्या होगा. उसकी इकोनॉमी को हुआ 1991 में. And what were the headlines? The headlines were India at the threshold of international bankruptcy. मई का महीना था, 1991 का साल था. चंद्रशेखर was the प्राइम मिनिस्टर and यशवंत सिन्हा was the फाइनेंस मिनिस्टर. एंड क्या थी हेडलाइंस कंट्री की? कंट्री की हेडलाइंस थी इंडिया एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द बैंक्रप्सी. Why? Because the kind of policies that we pursued in the past led us to where? इंडिपेंडेंस से बाद 1991 तक हमने क्या कमाया एज ए कंट्री? हमने कमाई बैंक्रप्सी. But remember friends, one thing good about this country is number one, हिंदुस्तान अकेला पूरी दुनिया में ऐसा देश है जिसने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया. और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसने कभी घुटने नहीं टेके. Our forex reserves were just enough to take care of our imports of 11 days. हमारे पास बिल्कुल पैसा बचा नहीं था. हम दुनिया को बोलने वाले थे कि हम लोग बैंकरप्ट हैं, हमें माफ करो. But then we said no, let's not give in, let's not come on the knees, let us fight it out. तो हमने क्या किया? हम IMF के पास में गए और हमने IMF को बोला कि हमें मदद करो, हम प्रॉब्लम में हैं. IMF ने कहा हम आपकी मदद करेंगे, जरूर करेंगे, बिकॉज वो हमारा काम है. पर what help do you need from us? And we told that we want you to bail us out in this situation. IMF ने कहा ठीक है, हम आपको बेल आउट करेंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि जो हम पैसा आपको देंगे हमको वापस मिलेगा? तो हमने कहा क्या चाहिए आपको? IMF ने कहा the only thing that we can trust in your case is your gold. And my friends, all of you must know this, 40 metric tons of gold was flown from India to London to be placed in favor of Bank of Japan. And against the security of that 40 metric tons of gold, यानी कि हवाई जहाज भर के उड़े हिंदुस्तान का गोल्ड लेके. And then I said, all right, your gold is fine as a security, but remember, we are not in the business of money lending. तो हमने कहा भाई साहब अब क्या चाहिए आपको? तो IMF ने हमसे कहा कि देखिए, अगर जिस तरह की पॉलिसीज आपने अभी तक करी हैं फॉलो, अगर आप उस तरह की पॉलिसी आगे भी परस्यू करते रहेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू बी एनी बेटर, यू आर गोइंग टू बी डीपर इन द डिच. तो हमने कहा बताइए आपको क्या चाहिए. एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, दैट टाइम